सर स्टूडेंट लाइफ के कंपैरिजन में आज सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? Doubt yourself. You have been doing a great work from your birth. सबसे ज़्यादा आपने अडेप्टिबिलिटी लीडरशिप का आपने सीखा कैसे वो चीज़? क्योंकि सबसे पहले आपको you have to understand what is the actual scenario of the market और गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम फाल्गुनी मजुमदार फ्रॉम बी फार्म थर्ड सेम। आज हम एक बहुत ही इंस्पायरिंग एलुमनाई से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद एक बहुत ही प्रोफेशनल जर्नी में अपना सफ़र तय कर चुके हैं। So it's an honor to have Mr. Sagar Soni sir with us from batch 2020 to 2024, an ex-CI research analyst, a trainee, an ex-trainee at Lupin Pharmaceuticals, and an academic trainee at Typer Hyderabad. Thank you, sir, to have us here to give us your time. thank you Falguni for the great introduction actually. So hello everyone. I hope this podcast actually brings you a different perspective about the industry and the NIPA. Apart from that, it will eventually enhance your knowledge output. सर अगर हम आपकी जर्नी देखें या फिर अगर हम अभी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अगर हम आपके पोजीशंस के बारे में बात करें तो उसके लिए जाने के लिए बहुत स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो कैन यू टेल मी कि किस टाइप के स्किल्स आपने क्रैक किए ताकि हम इन पोजीशंस में आपको हायर किया गया था? Yeah, first of all, I'll be thanking Venus Group of Institution for it because they have given a lot of chances to me to polish my leadership skill. Apart from that, मैंने अपनी B.Pharm journey में I rather focused on gaining a certain knowledge. Apart from that, I've also have been part of many co-curricular activities that helped me to enhance my leadership skill and attention to detail. तो अगर मैं sum up करूँ on my NIPA journey and my academic background from Venus Group of Institution, what happened actually is I've gained a lot of insight from the top minds of the industry. Okay, so when I was preparing for my GPAT, I've got a great guidance from Ankit sir. And talking about academically in B.Pharm from Venus, there were great teachers like Senghor sir and Dote sir. So these were the core pillar of my understanding. And where I am, I'll definitely dedicate those things for them. So looking forward to your journey from BNS to Naipur Hyderabad and to many industrial roles, you might have had some challenges or some life lessons that you might have gotten from them. So can you just share this to other peeps? First life lesson would be never stop believing yourself. So what happened eventually when I was preparing for my exams, so there were certain instances where I was losing hope, where I was losing self-confidence since I was not getting good marks. So what happened, I conveyed the same to my seniors, to my faculties. So they've given me certain assurance that you have that kind of capability. And what you can do, you just have to believe yourself. अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो you won't be able to crack anything in your life. So first of all would be this. Second of all that I would say is you should always seek for the guidance and help. अगर आपके सीनियर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, अगर आपके मेंटर्स आपको हेल्प कर सकते हैं एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ नेचर टू अप्रोच देम just for the guidance or just for the conveying your uneasiness to them, whether you're preparing or you do have certain problems in a personal life too. So you should always see for the guidance. You should always see for the mentorship with your seniors and your faculties. So that was the core thing that helped me out. And talking about the seniors, mentors, and peers, what's that one advice, collective one advice, academically and also related to your life that you have inculcated in your life and it still works for you? The advice that I gained was, first of all, as I told you, never stop believing yourself. Second would be, you should be a good listener. If you are not a good listener and you are just doing the thing by your own, so you won't be able to make it through. So आपको क्या करना है, सबसे पहले listen and carefully listen to your mentors and seniors what they're actually telling, क्योंकि उन्हें ज़्यादा experience होता है and they know many things apart from you. So it's better to listen and have a positive attitude on yourself. तो सर जैसे कि अभी आपने प्रीवियस आंसर किया कि सेल्फ डाउट या मोटिवेशन की कमी होना जो कि बहुत कॉमन चीज़ है एकेडमिक लाइफ में, तो उससे आपने कैसे ओवरकम किया? मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा कि आई वाज गुड इन ईच एंड एवरीथिंग. आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन ईच एंड एवरी इवेंट. आई वाज वेरी गुड एट माय एकेडमिक्स.
But when I was preparing for this GPAT and NIPA, there were many instances where I was losing my hope. So eventually, I don't know whether nowadays people do it or not. I was more inclined towards spirituality. What happened is, whenever I was feeling low, I started worshipping. And as I told you, I was having my seniors. I was having my seniors whenever I was needing them, whether seniors or super seniors. तो किसी को भी approach करो, they'll surely help you out. So these were the certain things that helped me out in that kind of journey. But apart from that, I've not compared myself to others eventually, because आपको पता है कि हाँ आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, सो यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द सक्सेसफुल वन. बट ऐसा नहीं करोगे तो इट विल हेल्प यू आउट इन द फ्यूचर ऑल्सो. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प मी आउट. Sir, as your role as a CI research analyst and also your internships or your management skills, there was this one thing जो कि आपके इधर डाइवर्स रोल के हिसाब से आपने अडेप्टेबिलिटी और लीडरशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फार्मा इंडस्ट्री, अब कोई भी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपने वो अडेप्टेबिलिटी और लीडरशिप का आपने सीखा कैसे वो चीज़, क्योंकि यू आर नॉट बॉर्न विद ऑल दीज स्किल्स. Yeah. सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इज लीड टू यू हियर? So when I got into NIPER, specifically into MPA, so we go through a rigorous training. हमारे jam session होते हैं, we had different committees, a training and development committee होती, we have many more things that eventually help you out. So आपको वो इतना ट्रेन कर देती है rigorous training कि आपको हर जगह लीड लेना ही होता है. You don't have any other choice. When I was preparing for my internship as a CI research analyst role into Admit Next, I was the first person who got the internship, like the first person who got the internship in my batch. Okay. So as a CI research analyst, what actually needs or expected from you is attention to detail, as I previously told. तो अगर आपका attention to detail अच्छा ही नहीं है and you are not even ready to take the risk to understand the things, to learn more things, नाइपर आने के बाद ऐसा नहीं कि आपकी जर्नी खत्म हो जाती या अब आपको कुछ पढ़ना नहीं. यू हैव टू स्टडी अलॉट. इवन सिंस आई गॉट प्लेस आई ऑल्सो हैव टू स्टडी अलॉट. सो ये पॉजिटिव एटीट्यूड और लर्निंग एटीट्यूड यू हैव टू मेंटेन. और उसके अलावा एज आई टोल्ड यू इन यूपेन और एडमेंट नेक्स्ट, द थिंग दैट हेल्प मी आउट एंड वर्क फॉर मी वाज अगेन सीकिंग हेल्प. क्योंकि वहाँ पर इतने सारे इंडस्ट्री पर्सनल्स रहते हैं, इतने एक्सपीरियंस पीपल रहते हैं दैट हैव सर्व्ड इनटू मेनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, 15 साल 20 साल. उतना एक्सपीरियंस यू वोंट बी गेटिंग एनीवेयर. तो अगर आप उनसे अप्रोच करते हो, उनके पास जाते हो और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, आपके अगर इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं और आप उनके साथ एक पॉजिटिव बॉन्ड बना सकते हो, तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. और वो कई सारी ऐसी गाइडेंस देते हैं दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू आउट इन द प्रोफेशनल एंड पर्सनल वर्ल्ड टू. सो दीज वर द थिंग दैट वाज वर्किंग फॉर मी. तो जैसे कि फ्रेशर्स फार्मेसी कोर्स तो ले लेते हैं, बट उनको लगता है कि अगर हमारा करियर डिसीजन गलत हो गया या फिर अगर हमें आगे का पाथ हमें नहीं समझ आया, रादर इट बी एम फार्म कर रहे हैं या एम बी कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हो, तो क्या आपके डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है आप में, क्या वो इसमें बहुत ज़्यादा काम आई है? लाइक वेयर यू सी योरसेल्फ नाउ, इज इट वर्किंग फॉर यू? या इट इज़ डेफिनेटली वर्किंग फॉर मी. पर सबसे पहले आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्चुअल सिनेरियो ऑफ द मार्केट और द पर्टिकुलर डोमेन दैट यू आर परसिंग. मैं बी फार्म में आया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नाइपर क्या होता है, जीपैट क्या होता है. इवेंचुअली व्हेनेवर आई रिकॉल, कुछ सीनियर्स थे, कुछ फैकल्टीज थे जिनने मुझे उसके बारे में बताया कि हाँ देयर इज सर्टेन एग्जाम नोन एज जीपैट और नाइपर. तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट यही था कि हाँ आई शुड गो फॉर दी फर्दर स्टडीज इधर इनटू एमएस और एमफार्म. पर कुछ सीनियर्स ने जब जीपैट और नाइपर क्वालिफाई किया एंड दे ऑप्टेड फॉर एमबीए. फ्रॉम दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई टेकन द गाइडेंस ऑफ देम कि सर एमबीए ही क्यों. जैसे आपने मुझसे पूछा एमबीए ही क्यों, एमएस क्यों नहीं, एमफार्म क्यों नहीं. तो उनका भी यही था कि सबसे पहले ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन रिसर्च, इफ़ यू आर वेरी गुड विद द एनालिटिकल पार्ट और वी कैन से स्टूडियस पार्ट, सो आपके लिए एमटेक एमफार्म एमएस इज़ वेरी गुड. But if you are a kind of person who would like to interact with others, who would like to know the business aspect of pharmaceutical industry, who wants to understand how does supply chain works, how does the market works, so that's why he ended up taking MBA. So do I. I was also very enthusiastic person when I was pursuing my B Pharm. तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इट इज़ बेटर टू परस्यू माई फर्दर एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इनटू MBA. सो दीज वर द थिंग. पर अगर मैं जूनियर्स को, अपकमिंग जूनियर्स को बताना चाहूँ, तो इट विल डेफिनेटली बी योर इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. हाउ
यू कैन डिफाइन योर पर्सनैलिटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यू डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद अदर्स, यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एस्पेक्ट, यू आर वेरी indulge into studies or research or something like that, तो go for MS and M.Pharm. Those are also a good fee. पर अगर आपको चाहिए कि you want a personal development, okay, you want to understand how does proper leadership looks like, or you want to have a better career for yourself कि हाँ मुझे sales and marketing जॉब करना है और consultant जॉब करना है, I don't want to spend my time into laboratories or plants. So you can go for the MBA career, but it will totally depend on you. कि अगर आपको अच्छा लगता है कि you are enjoying your life into labs, you should definitely pursue it. और एक अनदर एस्पेक्ट ये भी होता है कि what kind of financial condition do you have. अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो MBA स्लाइटली कॉस्टलियर और आई कैन से एक्सपेंसिव थोड़ा सा, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी स्टाइपेंड इन इट, हमें स्टाइपेंड नहीं मिलता है और फीस भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बट MS और M.Pharm जो परस्यू कर रहे होते हैं स्टाइपेंड मिलता है, तो उन्हें जो मंथली अलाउंसेस रहते हैं वो उन्हें मिलते हैं। बट एटलीस्ट अगर आपका कोर्स MBA का XYZ है तो प्लस 2 लाख और 3 लाख आपको एक्स्ट्रा लग ही जाएगा, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ सिटी। सो ये सब एस्पेक्ट में रहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन हो गया, फाइनेंशियल बर्डन हो गया, फैमिली कंडीशन क्या है, तो ये सब कुछ एस्पेक्ट होते हैं। इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको अभी से ही करियर परस्यू करना है, यू डोंट वांट टू गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन और यू वांट टू गो फॉर द M.Pharm और MBA। इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज योर सिनेरियो। सर स्टूडेंट लाइफ के कंपैरिजन में आज सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग हो जाती है, बचपन में अलग, अडल्टहुड में अलग और आगे जाकर तो सभी के लिए अलग हो जाती है। तो आप कैसे सक्सेस को डिफाइन करते हैं? सक्सेस तो मुझे याद आया, मेरे फेयरवेल में एक जूनियर ने हमें पेन दिए थे और उसके ऊपर सर्टेन कोट्स लिखे होते हैं। उसमें से एक कोट ये था, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फीटल, इट इज़ ए कंटिन्यूअस एफर्ट दैट मैटर्स। तो मेरे लिए सक्सेस ये नहीं है कि मुझे नाइपर मिल गया, मेरे लिए सक्सेस ये नहीं है कि मेरा B.Pharm कंप्लीट हो गया, आई हैव बीन प्लेस्ड, आई गॉट द इंटर्नशिप। सक्सेस एक कंटिन्यूअस साइकिल है, एक विकसित साइकिल है। अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूअस अर्निंग करना और एजुकेशन लेना और स्टडी करना इज योर सक्सेस, सो इट विल बी डिफाइंड ऑन दैट एस्पेक्ट। बट सक्सेस कभी भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपके लिए गोल्स अलग हो सकते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं कि यू गॉट द एडमिशन है, दैट इज सक्सेस फॉर यू, पर आगे क्या? तो आप जो भी एस्पेक्ट या हम एक तरीके से कह सकते हैं जो कंटिन्यूस ऑब्स्टिकल आ रहे हैं हमारे सामने, अगर आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, दैट इज अ सक्सेस फॉर यू। बट अगेन आई वुड से सक्सेस इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग, इट इज अ विक्शियस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू हैव टू वर्क फॉर इट रेगुलर। सर एक थोड़ा फन क्वेश्चन, एकेडमिक लाइफ से छोड़ के एकदम, कि अगर आप अपनी लाइफ को किसी मूवी से रिलेट करना चाहें तो मूवी कौन सी होगी? मूवी से रिलेट करना चाहे, हम्म, एक पुरानी मूवी थी आमिर खान की, तारे ज़मीं पर। हाँ। अब सो आई वाज नॉट एट ऑल अ गुड स्टूडेंट, आई वाज नॉट एट ऑल अ स्टूडियस स्टूडेंट, आई मस्ट से। तो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं था, बस कह सकते हैं कि थोड़ा अबव एवरेज बट नॉट दैट मच। पर जैसे उसे उसका टीचर मिला, फैकल्टी मिला, दैट वाज आमिर खान, वैसे ही मुझे यहाँ पर मेरे फैकल्टीज मिले, मेरे मेंटोर्स मिले। सो दैट्स हाउ आई विल डेफिनेटली डेडिकेट माई थिंग्स, माई सक्सेस और द प्लेस वेयर आई एम टू देम। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आई वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ एक्चुअली लाइफ में करना क्या है। आप लोग जैसे आए हो वैसे मैं भी आया था कि हाँ आई वुड लाइक टू परस्यू माई करियर टू B.Pharm, उसके बाद आई विल बी गोइंग फॉर द MRship, उसके बाद सेल्स वगैरह किया, मार्केटिंग वगैरह किया, उसके बाद खत्म। पर पोस्ट ग्रेजुएशन का इम्पोर्टेंस या एकेडमिक्स जो भी को करिकुलर या एकेडमिक जो भी चीज़ें हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना, वो मुझे सीनियर्स की वजह से पता चला। एंड सर्टेनली आई वुड ऑल्सो डेडिकेट द सेम थिंग टू माई बैचमेट्स टू, क्योंकि उन लोगों ने भी कई सारी चीज़ें में मुझे पुश किया। सो इन शॉर्ट, जो मुझे डिफाइन कर पाएगा वो डेफिनेटली भी दैट मूवी वुड बी तारे ज़मीं पर। एंड में अगर आप करंट फ्रेशर्स को या फिर अपकमिंग फार्मासिस्ट को एक गाइडिंग प्रिंसिपल देना चाहे एज अ मेंटर या एज एन एल्डर ब्रदर, वट एवर यू वांट टू कोट अबाउट इट, तो वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा जो कि उनको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है? लाइफ लॉन्ग प्रिंसिपल, कई सारी चीज़ें तो आई ऑलरेडी रिपीटेड, पर सबसे पहले तो ये होगा कि
instead of jumping on certain things into life, first of all start or focus on learning. वो मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई की बात है, शायद लाइफ लर्निंग भी हो सकती है और कम्युनिकेशन एक लर्निंग हो सकता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस एक लर्निंग हो सकता है। हम क्या सोचते हैं कि जैसे हम लोगों ने एडमिशन लिया, हमारा करियर सेट हो चुका है, वी डोंट हैव टू लर्न समथिंग न्यू। अभी मैं अगर नाइपर में भी हूँ, आई हैव टू लर्न अलॉट। कई सारी ऐसी चीज़ें यू डोंट इवन नो, हमने बैचलर्स में सुना ही नहीं, न गेस्टिमेट सुना है, न केस स्टडी सुना, कुछ भी नहीं पता। पर अगर हम चाहते हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड मोर थिंग्स इनटू लाइफ जो हमें दूसरों से अलग करे, क्योंकि सभी लोग सेम ही बात पर आए हैं यहाँ पर, तो वो होगा सबसे पहले यू हैव टू बी रेडी टू लर्न मोर। अभी मैं एमबीए में हूँ, आई एम लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केटिंग, क्या होता है, कैसे होता है। आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ रेगुलेटरी pathways or something like that is does exist into the world. So ये कुछ चीज़ें होती है। उसके अलावा एक चीज़ वही होगी, you should not doubt yourself. You have been doing a great work from your birth and you do have that kind of capability that may make you different from others. So you are a unique person actually. पर आपको अपना मोटिव लाइफ का ढूंढना पड़े। So for that you have to seek guidance. For that you have to learn more about new things, whether it is curriculum or out of curriculum. But you have to understand कि मुझे करना क्या है लाइफ में। That will eventually help you. और उसके अलावा एक लास्ट चीज़ ये हो कि मेक बॉन्ड्स, either with your seniors, either with your batchmates, either with your mentors. अगर आपके बॉन्ड्स अच्छे हैं with your seniors, definitely that will eventually help you out in the future. अगर आपके बॉन्ड्स नहीं हैं, अगर आपके पास कनेक्शंस नहीं हैं और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक होते हो जहाँ यू डोंट हैव एनी नॉलेज, so these people will definitely help you out. So at the end, these are the things that should be inculcated into your character or to young freshers who would like to pursue their career into B.Pharm or any other field. But you should be believing yourself and try to meet bonds. Thank you so much, sir, for giving your time us here, and we're also so glad to have us here back at BNS as a, a trainee and ex-trainee at Lupin and also an academic training at Naipar, Hyderabad. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.